Welcome back, students, to the 10th lesson of current electricity. Today we are going to learn about the Kirchhoff's voltage law, KVL, or the loop rule. In case we have a simple circuit, we can always use the Ohm's law to solve various circuit problems. But if you have multi-loop circuits like this, there are two batteries, 20 volt, 30 volt, and another 30 volt battery. You have three resistances. What is in series, what is in parallel is not very clearly identifiable. Then, in such cases, we need the help of the Kirchhoff's laws to solve such circuit problems. How to use them? That's what we're going to learn today. In the previous class, we have studied about the Kirchhoff's current law, or KCL. Today we are going to talk about Kirchhoff's voltage law. Let's look at the circuit. We have a battery and we have three resistances, R1, R2 and R3. The first thing that we should always remember is that a battery is a place where charges gain electrical energy, while resistances are places where electrical energy is lost or converted into other forms of energy like heat or light or motion in a motor. So, the law of conservation of energy is the base of the Kirchhoff's voltage law. It says that the total voltage gained or the total energy gained by the charges inside the battery is always equal to the total energy lost in the three resistances in this diagram. तो अगर इसने यहाँ पे let us say तीनों रेजिस्टेंस एक जैसे हैं, यहाँ पे इसने 30 वोल्ट का बैटरी है, तो यहाँ पर 10 वोल्ट आएगा, यहाँ पर भी 10 आएगा, यहाँ पे भी 10 आएगा, तो 30 वोल्ट गेन किया और 30 ही इसको सर्किट में लूज करना है. वोल्टेज क्या होती है? वोल्टेज तो होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज. सो if you have gained 30 joules of energy, you matlab 1 coulomb of charge has gained 30 joules of energy, then that same 1 coulomb of charge will lose 30 joules of energy in the entire circuit. If these resistances are identical, same valued, then the loss would be equally divided amongst the three resistances. So the basic rule is that the energy gained is always equal to the energy lost. Right? That's the first concept. To understand it through an analogy, let us consider, बचपन में आपने लिया ना, सीढ़ी से चढ़ते हैं ऊपर, नीचे से स्लाइडिंग करते हैं, स्लाइडिंग चूट. So in this slide, what happens is that हम लोग सीढ़ी से ऊपर 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 चढ़ते हैं, टॉप पे जाते हैं. So when we go up, we gain electrical energy, and on the slide we come down and we lose energy. So stair is a place where gain of energy takes place, while on the slide we reduce our energy, gravitational energy, potential energy. और ये एनर्जी का क्या होता है? एक तो हम जब स्लाइड करते हैं तो हमको आवाज़ भी आती है, कुछ ची ची की आवाज़ें भी आ सकती हैं. हमारा बॉटम थोड़ा वार्म हो जाता है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन with the slide. So work is being done. Now this analogy is similar to an electrical circuit. In an electrical circuit, जो काम सीढ़ी करती है एनर्जी को बढ़ाने का, वो काम सेल करता है, बैटरी करती है. So battery is a place where energy is gained,
and the slide is a place which is like a resistance. So energy is lost in the resistance. It is gained in the battery and is lost in the resistance. So that's what we are talking of. So एक सर्किट के अंदर जितना गेन होता है एग्जैक्टली उतना ही लॉस होता है, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन. यहाँ से नीचे आते हैं, फिर भाग भाग के इधर जाते हैं और फिर ऊपर चढ़ते हैं, फिर ऐसे करते रहते हैं. तो सर्किट भी ऐसे ही होता है, गोल गोल चार्जेस फ्लो करते ही रहते हैं. Another analogy is, मान लीजिए हम स्कीइंग का एग्जाम्पल लेते हैं. सो व्हाट वी फाइंड इज दैट हम क्या करते हैं, टोटल हम पहाड़ चढ़ के जाते हैं, या हम कोई ट्रॉली से हम पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं. ओके, नाउ सो व्हाट हैज दिस ट्रॉली थिंग डन टू अस? इट हैज लिफ्टेड अस फ्रॉम लोअर हाइट्स टू द टॉप ऑफ द पीक, अपर हाइट्स. So it is acting like a source, a battery. So this trolley takes you up above in the mountains. फिर वहां से हम स्कीइंग करके हम आते रहते हैं, नीचे आते रहते हैं, तो हम लूज करते रहते हैं अपनी एनर्जी. So total energy gained, और वापस वहीं आ जाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर. तो total energy gained by the trolley, given to you by the trolley, you lose that energy slowly and enjoyably while you're coming down the snow covered mountains by skiing on them. So this is also an analogy for the Kirchhoff's voltage law. यहाँ पर देखिए हमारे पास एक बैटरी है, यहाँ पर V5, एक बैटरी है यहाँ पे V1, एक बैटरी है यहाँ पे V4, and there are two resistances. So जितना वोल्टेज हमारा गेन होगा उतना ही एग्जैक्टली वोल्टेज हमारा लॉस होगा. लेकिन उसके लिए एक ज़रूरी चीज़ है, किरचॉफ्स लॉ के लिए हमको एक रास्ता सोचना पड़ता है, एक लूप सोचना पड़ता है. इट इज़ एप्लीकेबल टू लूप्स. करंट लॉ वाज एप्लीकेबल टू जंक्शंस, मीटिंग पॉइंट्स ऑफ वायर्स. बट यहाँ पर एक लूप चाहिए, क्लोज्ड रास्ता चाहिए. जैसे यहाँ पे एक रेक्टेंगल हमको नजर आ रहा है, एक रास्ता नजर आ रहा है, कुछ साइन कन्वेंशन करते हैं, देन वी विल अप्लाई दिस. राइट नाउ therefore the Kirchhoff's voltage law or the loop rule, the first thing is that it is based on the principle of the law of conservation of energy, and it is valid for closed circuits or loops. Let's start from a simple case. Suppose we have a circuit, a simple circuit consisting of one battery and one resistance. Battery of V volts, resistance R, carrying a current I. In the circuit, current की direction is from positive to negative. Now, ये circuit इतना simple है that how we can solve this using Ohm's law itself. But I want to use the Kirchhoff's law. दोनों से करेंगे, देखेंगे कि दोनों से सेम ही रिजल्ट आता है. तो बैटरी इज अ प्लेस वेयर गेन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस. चार्जेस गेन एनर्जी ऑन पासिंग टू द बैटरी, क्योंकि बैटरी में वो पहले नेगेटिव में आते हैं फिर पॉजिटिव में जाते हैं. तो नेगेटिव मतलब लोअर, लोअर से हायर. बैटरी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेन होती है एट द कॉस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द बैटरी. जब ये चार्जेस हमारे चल चल के ये हमारे रेजिस्टेंस में से गुजरते हैं, यहाँ से कोई गुजरेगा, it will lose energy in the resistance. So total energy gained in a closed loop is equal to total energy lost in that same loop. So summation E का मतलब energy gained का हम E लिखते हैं, which is the voltage, and summation IR, इसमें से करंट I जा रहा है, रेजिस्टेंस R है. तो energy gained per unit charge is equal to energy lost per unit charge, which is same as voltage gain is equal to voltage lost. Ohm's law बोलता है V is equal to IR, right? यहाँ से भी हमारा वैसे ही आएगा. वहाँ पे कितना है, वोल्टेज तो एक ही है, समीशन E कितना है V, और करंट है I, रेजिस्टेंस है R, which is IR. ये तो Ohm's law ही आ गया. तो ये बेसिकली हमको Ohm's law का ये एक स्टाइल है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ.
वोल्टेज लॉ को यूज करना हो और सही रिजल्ट लाने हो तो वी नीड टू understand the sign convention that is there. So we have two sign conventions, one for the battery and another for the IRs, losses, one for gain, one for loss. So let's look at the sign convention, summation E, that is for the gain of electrical energy. जब भी हम किरचॉफ्स लॉ यूज करते हैं, सबसे पहले हमको एक लूप सिलेक्ट करना होता है. हमने बोला इस लूप के नाम रखने होते हैं. हमने इसका नाम रखा ए बी सी डी ए. क्लोज लूप होना चाहिए, जहां से शुरू वहीं पे खत्म. ए बी सी डी ए. हमको इमेजिन करना पड़ता है कि हम खुद चल रहे हैं. पहले ए से हम बी चलते हैं, फिर बी से हम सी जाते हैं, सी से डी आते हैं, डी से ए आते हैं. अपने आप को इमेजिन करते हैं हम छोटे से कोई लिलीपुट हैं और हम इस रास्ते पे खुद चल 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 कर रहे हैं. जहां से शुरू वहीं पर खत्म. तो ए से स्टार्ट, ए से खत्म. ओके. तो ये लूप हमको पहले जरूर सिलेक्ट करना पड़ता है. और अगर हम इस लूप में चलते चलते अपने रास्ते पे जब चलें तो पहले हमारी मुलाकात नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से हो और फिर हम उसके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ें. इसका मतलब हम लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे जा रहे हैं. जब भी आप लोअर से हायर जाओगे देन दैट मीन्स आप बैटरी को ई की जो साइन है, अगर ये 10 वोल्ट है तो आप लिखोगे +10 वोल्ट, पॉजिटिव साइन लेंगे. और चलते चलते ऐसा भी तो हो सकता है कि हम पहले पॉजिटिव से मिलें और फिर उसके बाद नेगेटिव से मिलें. इसका मतलब हम हायर से लोअर पे आ रहे हैं. दिस इज लाइक सेइंग कि कोई आदमी स्लाइड पे चढ़ा और डर गया, ऊपर जाके वापस ही सीढ़ी से नीचे उतर आया. तो नीचे उतरोगे तो सीढ़ी से नीचे उतरोगे तो आपका लॉस हो रहा है एनर्जी का. सो आप अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हो तो लॉस हो रहा है. बैटरी अगर 5 वोल्ट की है तो आप लिखोगे -5 वोल्ट. तो ये तो हुई साइन कन्वेंशन हमारा किसका, बैटरी का. पहले नेगेटिव आया बाद में पॉजिटिव आया तो वोल्टेज के साइन को पॉजिटिव लिखेंगे. और अगर पहले पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी मिली बाद में नेगेटिव मिली तो वोल्टेज को हम नेगेटिव लिखेंगे. पहले रूल समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा इंजॉय करेंगे. फिर रूल आ गया हमारा समीशन आईआर के ऊपर, करंट इनटू रेजिस्टेंस. तो अब हम मान लो किसी रेजिस्टेंस में से गुजर रहे हैं, हमारे चलने का रास्ता है, हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं और हम क्या देखते हैं, उस वायर में करंट भी हमारी ही डायरेक्शन में चल रहा है, आई इंटू आर. ये करंट का चलने का रास्ता और हमारा जो रास्ता इमेजिन किया है हमने, ये रास्ते जाएंगे ए बी सी डी ए. जो रास्ता है और करंट है दोनों की डायरेक्शन सेम है. अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो I into R, current into resistance, will be taken as positive. And if the direction of our path and that of current is opposite to each other, then I into R is going to be negative. मतलब करंट अगर लेफ्ट से राइट जा रहा है और हमारे रास्ते पे हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, उल्टा है दोनों की डायरेक्शन, है ना. जैसे नदी में पानी बह रहा है, आप स्विमिंग नदी के अलोंग करोगे, नदी की डायरेक्शन में करोगे तो आसान होगा. पॉजिटिव, ऑपोजिट जाओगे, नदी के ऑपोजिट स्विमिंग करोगे वो तो नेगेटिव. सो आई इंटू आर इज नेगेटिव इन द सेकेंड केस एंड आई इंटू आर इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट केस. अप्लाई करने में ही बच्चों ज़्यादा सीखते हैं, तो आइए अप्लाई करना इज द बेस्ट थिंग. तो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉज, हमने एक लूप लिया, एक क्लोज रास्ता लिया, ए बी सी डी ए बक दे लूप, ए बी सी डी ए. ना ए बी सी डी ए लूप में हम देखते हैं कि हमारे पास 3 बैटरीज हैं, एक 9 वोल्ट, एक 4 वोल्ट और एक 3 वोल्ट. और उस रास्ते में हमारे पास एक रेजिस्टेंस आता है ये 4 ओम का, फिर 3 ओम का, फिर 2 ओम का और यहाँ पर भी 2 ओम का. अब क्योंकि रास्ता तो एक ही है, देयर इज ओनली वन रास्ता फॉर द फ्लो ऑफ करंट,
तो लेट अस से द करंट इन दिस आर्म इज द सेम, एंड ये करंट की डायरेक्शन हमने मार्क कर ली। ये करंट ऐसा एंटी क्लॉकवाइज चलता है, आई करंट चलता है। ओके, और हमने लेट अस से हमने एक लूप ले लिया। लेट मी फर्स्ट टेक द लूप ADCBA। ये हमारे हाथ में, हम क्या लें, ABCDA लें कि ADCBA लें। मैं दोनों करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि देखो दोनों में ही आंसर सेम आएगा। तो ये हमारी अपनी मर्जी है, जो मर्जी लेना चाहो ले सकते हो आप। मैंने दोनों ही लेके देखूंगा, लेकिन चलो पहले कौन सा लूँ मैं, आप जो बोलोगे। ये बना हुआ है ग्रीन, तो ये ले लेता हूँ। लेट मी सिलेक्ट द लूप ADCBA। ये रास्ता, तो इसलिए मैं रास्ते को अलग कलर के साथ मार्क कर लेता हूँ ताकि बाद में भूल ना जाऊँ कि मैंने रास्ता क्या चूज किया है। रास्ता ये चूज किया, कहाँ से जाऊंगा मैं, ए से जाऊंगा पहले डी पे, फिर डी से जाऊंगा सी पे, फिर सी से जाऊंगा बी पे, और बी से होता हुआ वापस ए पे आऊंगा। और मेरा किरचॉफ्स लॉ बोलता है समेशन ई इज इक्वल टू समेशन आई आर। सही है, तो ए से चलते हैं। समेशन ई मतलब यहाँ पे वोल्टेज गेन वाली बातें आएंगी, बैटरीज यहाँ आएंगी राइट लेफ्ट हैंड साइड में, और आई आर हमारे राइट हैंड साइड में आएंगे। तो ए से मैं डी गया, मैं ए से डी जा रहा हूँ। मेरे चलने की डायरेक्शन और करंट के चलने की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट है तो मतलब आई आर क्या लूँगा, नेगेटिव। रेजिस्टेंस कितना, 2, करंट कितना, आई, तो आई विल राइट -2i। फिर डी से सी की तरफ जाऊंगा। डी से सी की तरफ जाता हूँ, पहले किससे मुलाकात होती है, 3 वोल्ट की बैटरी से। 3 वोल्ट का कौन सा टर्मिनल पहले आता है, नेगेटिव, बाद में पॉजिटिव, मतलब मैं लोअर से हायर में जा रहा हूँ। तो मैं अब इसको साइन को क्या लूंगा, +3। यहाँ लिखा मैंने +3, वोल्टेज वाली साइड, बीच में इक्वल टू का साइन है। अब आगे हम इस 2 ओम की तरफ। हमारे चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, साइन में माइनस आएगा। करंट आई है, ये भी होगा -2i। आ गया। फिर हम आते हैं सी से बी। फिर से हमारे चलने की डायरेक्शन ग्रीन वाली डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट। करंट आई है, रेजिस्टेंस 3 है, सो आई से -3i। आ गया -3i। फिर हम बी पे पहुंच गए हैं। अब हम बी से क्या करते हैं, बी से ए की तरफ जाएंगे। पहले बैटरी आई, पहले कौन सा टर्मिनल आया उसका, लोअर, नेगेटिव, फिर हायर, तो हम लोअर से हायर जा रहे हैं, तो गेन किया +4 वोल्ट, +4। फिर मैं 4 ओम की रेजिस्टेंस से गुजरा। मेरे चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट, इसलिए -4i। फिर मैं इस बैटरी में आ गया, पहले मुझे पॉजिटिव टर्मिनल मिला, बाद में नेगेटिव, इसका मतलब मैं हायर से लोअर जा रहा हूं, तो मेरा लॉस हो रहा है। लॉस को हम माइनस लिखते हैं, तो मैं लिखता हूं इसको -9। ओके, तो -9। मैं ए से स्टार्ट हुआ था, ए पे पहुंच गया, काम मेरा खत्म। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। 3 + 4 7 एंड -9 इज -2। यहाँ पर -2, -2, -3, -4, दैट्स -11i। माइनस माइनस कैंसल, therefore I is equal to 2/11 एम्पियर। तो कितना करंट फ्लो करता है सर्किट में, दैट्स 2/11 एम्पियर। ओके, अगर मैंने ये बच्चों लूप लिया होता ए बक दे लूप, ABCDA, समेशन E इज इक्वल टू समेशन IR, तो अब की बार मेरा ये जो है डायरेक्शन, इसको मैं हटा देता हूं। अब मैं क्या ले रहा हूं, डायरेक्शन, आई एम टेकिंग डायरेक्शन, एंड दैट डायरेक्शन लेट मी मार्क हियर आउट। ओके, तो मैं ले रहा हूं, ये डायरेक्शन ले रहा हूं, ए से बी से सी से डी से ए, ये लूप ले रहा हूं यहां पे। ओके, नाउ हियर वी फाइंड दैट
समीशन ई इक्वल टू समीशन आई आर। तो पहले मैं ए से बी गया, पहले कौन मिला मेरे को, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव, मतलब मैंने एनर्जी गेन किया, राइट, मैंने एनर्जी गेन किया। अब इसलिए लिखा मैंने +9। फिर मैं गुजरा कहाँ से, 4 ओम। मेरी चलने की डायरेक्शन, मेरे चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, प्लस, तो +4 आएगा। फिर मैं मिला बैटरी से 4 वोल्ट की, लेकिन पहले हायर आया बाद में लोअर आया, तो आई एम लूजिंग एनर्जी, इसलिए -4। बी पे पहुंच गया हूं। अब मैं बी से सी जाता हूं, मेरे चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम, इसलिए +3 इज द रेजिस्टेंस, आई इज द करंट, +3i। सी पे पहुंच गया हूं, करंट आई है, मेरे चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम, इसलिए +2i। अब बैटरी आ गई, लेफ्ट हैंड साइड का सामान आ गया, पहले पॉजिटिव आया फिर नेगेटिव आया, मतलब मैं हायर से लोअर आ रहा हूं, नीचे को तरफ एरो है, इसलिए यह आएगा मेरा -3, राइट। डी पे पहुंच गया, डी से ए आना है मेरे को, करंट की डायरेक्शन और मेरे चलने की डायरेक्शन सेम, +2i। देखते हैं, 9 - 4 - 3 दैट्स 2 and this is 11i, I is equal to 2 by 11 एम्पियर। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, that current in both the cases is 2 by 11 एम्पियर। तो आप कोई भी लूप लें, आपका आंसर हमेशा सही आएगा, ओके। Let us look at another question. This is the question. हमारे पास एक सर्किट है, it consists of एक फिगर है, 8 की तरह दिखता है ये, उसमें 2 बैटरीज हैं, एक 2 वोल्ट की, एक 1 वोल्ट की। हमारे पास रेजिस्टेंसेस हैं, ऊपर से देखूं तो 1 ओम, क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, 2 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया, इधर लेफ्ट में 5 और 5 है, और बी और ई के बीच में 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ये क्वेश्चन है। अब ओम्स लॉ इस पे लगाना तो बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहला 2 चीजें हमको ढूंढने के लिए कहा गया, हाउ मच करंट इज सेंट बाय ईच सेल, एंड सेकंड क्वेश्चन इज what is the potential difference across 10 ohm resistance। तो कैसे करें, तो बच्चों स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, करंट ढूंढना है फ्रॉम ईच सेल। लेट अस सपोज दैट द फर्स्ट सेल सेंड्स आउट सम करंट I1, तो करंट्स मार्क करेंगे, लेट्स सी। तो मैंने क्या किया अभी तक, सबसे फर्स्ट स्टेप, इस सर्किट के अंदर करंट्स को मार्क किया। मैं बोलता हूं लेट अस से 1 वोल्ट जो है वो I1 करंट भेजता है, ग्रीन वाला, और सेकंड जो 2 वोल्ट है वो I2 करंट भेजता है। तो यहां से बच्चों I1 आया, फिर B तक I1 गया, ग्रीन करंट, इधर से भी I2 आया, इधर से I2 आया, तो किरचॉफ्स करंट लॉ बोलता है एट जंक्शन B करंट कमिंग इन शुड बी इक्वल टू करंट गोइंग आउट। यहां से I1 आया, यहां से I2 आया, तो BE में करंट हो जाएगा I1 प्लस I2। E पर कितना पहुंचा, I1 प्लस I2। एक और बात बतानी जरूरी है किसी भी बैटरी के बारे में, बैटरी बोलती है कि मैं अपने पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट बाहर भेजूंगी उतना ही वापस करंट अपने नेगेटिव टर्मिनल से लूंगी, ना पिच्चू सा ज्यादा ना पिच्चू सा कम, है ना। हमारे घर में भाई बहन होते हैं, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं जाओ पढ़ने जाना है जहां जाओ, लेकिन शाम को ना मेरे को यही वाले बच्चे चाहिए वापस घर में, ये नहीं है कोई और आ जाए, है ना। कोई और आ गया बोलता है कि
तो आपको क्या फर्क पड़ता है, आपके 2 बच्चे गए थे 2 आ गए, बोलते ना ना हमको वही वाले 2 चाहिए, वही वाले, ये नहीं है कोई और आ गया उसको नहीं रोटी खिलाएंगे हम, हमको पहले अपने चाहिए ना, ढूंढने हमने बच्चे कहाँ गए हमारे। तो यही जो है कहानी है। तो बैटरी भी यही करती है, विच इज दी राइट। सो करंट्स को मार्क करना है यूजिंग द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ। यहां पर ई पर क्या होगा, फिर से बिछुड़ जाएंगे, 2 रास्ते हैं। तो ऊपर की तरफ जाएगा I2 करंट और नीचे की तरफ आएगा I1 करंट, ताकि 1 वोल्ट वाली बैटरी खुश हो जाए, मैंने I1 दिया था लेफ्ट की तरफ, I1 ही मुझे मिल गया राइट से। I2 2 वोल्ट वाली बैटरी भी खुश हो जाए, बोलती है मैंने I2 दिया था, मुझे वापस I2 मिल गया। स्टेप नंबर 1 इज द किरचॉफ्स करंट लॉ लगाना। टू अप्लाई द किरचॉफ्स करंट लॉ, करंट कमिंग इन इज इक्वल टू करंट गोइंग आउट, I1 plus I2 is equal to IBE। अब कितने अननोन है हमारे पास, 2, I1 एंड I2। मैथ 10th क्लास में सिखा दिया था हमको दैट 2 अननोन हो तो हमारे पास 2 इक्वेशंस होनी चाहिए, और 2 इक्वेशंस हम कहां से बनाएंगे, 2 बार हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को लगाएंगे। तो एक बार हम लगाते हैं, एक लूप सिलेक्ट करते हैं, लूप का नाम रख लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो जाए बाद में। तो हमने एक लूप रखी ABEFA, ऊपर वाला रेक्टेंगल ए, ये वाली लूप ऐसे ए से बी जैसे जाएंगे हम, राइट, हम ऐसे जाएंगे कुछ ऐसा। तो यार ये तो उसको लग रहा है मैं वो बना रहा हूँ, जबकि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। ओके, हम बड़ा कर रहे हैं, वेरी गुड, तो कर अपनी मर्जी। सो हम ए से जाएंगे बी, बी से जाएंगे ई, एफ से जाएंगे ए। तो ये तो बड़ा अच्छी बात है, ये तो चल नहीं रहा था ना, ये ए बेवफा लूप है, ए बेवफा, बी ए बी ई एफ ए बेवफा लूप। ए बेवफा लूप के ऊपर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं। क्या है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, समीशन ई इज इक्वल टू समीशन आई आर, यहां पे है। तो मैं ए बी वफा रूप पे समीशन ई इज इक्वल टू समीशन आई आर। तो ए से मैं गया सबसे पहले बी पे, मेरे चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम, करंट कितना है I2, रेजिस्टेंस कितना 5, तो IR कितना हो जाएगा I5 I2, प्लस के माइनस प्लस, क्यों, बिकॉज मेरे चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, प्लस 5I2। अब मैं B से E जाऊंगा, रेजिस्टेंस है 10 ओम, करंट है I1 प्लस I2, हमारे चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम, इसलिए प्लस 10 I1 प्लस I2। फिर मैं गया E से F, 2 ओम का रेजिस्टेंस, करंट है मेरा I2, वापस प्लस 2 I2, वेरी गुड, यहां पे प्लस 1 I2। और फिर मैं बैटरी में कहा गया, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो हो गया मेरा प्लस 2 वोल्ट। यहाँ पे मैंने समीशन ई पे लिख लिया प्लस 2 वोल्ट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू 10I1 प्लस 18I2। 2 से डिवाइड होते हैं सारे, तो 1 इज इक्वल टू 5I1 प्लस 9I2। आई एम कॉलिंग दिस एज से इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2, जो भी नाम रखना चाहें आप। तो एक इक्वेशन मेरे पास आ गई I1 और I2 के टर्म्स में। एक और इक्वेशन बनानी है, राइट। लेट मी टेक, अब लूप लेता हूं मैं, बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी, बकदेव बकदेव बकदेव, बी सी डी ई बी बकदेव बकदेव लूप लेता हूं, समीशन ई इक्वल टू समीशन आई आर। तो मैंने लूप लिया है बच्चों यहाँ पे ऐसा, राइट, ऐसा लूप लिया है। तो अब देखो B से C जा रहा हूं, तो मेरी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट, जानबूझ के लिया मैंने ताकि हमको दिखाई दे कि हम उल्टा भी चलें तो कोई दिक्कत नहीं है। B से C गया तो डायरेक्शन समीशन IR विल बी नेगेटिव, so I'll write -5I1 here,
-5i1। फिर C से D की तरफ जाना है, पहले प्लस आया बाद में माइनस, इसका मतलब मैं हायर से लोअर जा रहा हूँ, लॉस होगा, तो -1। फिर इसी तरह से -2i1, -2i1 यहाँ पर भी, एंड यहाँ पर आएगा E से B, हमारी डायरेक्शन इधर है, करंट की ऑपोजिट है, -10 ब्रैकेट्स में i1 प्लस i2। तो आई विल गेट दिस -10 i1 प्लस। इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा, सॉल्व करें, i1 i2 अलग अलग करें, तो 1 विल बी इक्वल टू 19i1 प्लस 10i2। माइनस माइनस में खा गया, सबके पास माइनस था, खा गया। सो 19i1 प्लस 10i2 इज इक्वल टू 1। वेरी गुड। यहां पर है हमारे पास 5i1 प्लस 9i2, इक्वेशन नंबर 2। 10th क्लास में सीखा था ना, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, उसका इस्तेमाल करेंगे। लेट मी यूज एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेट कैसे करते हैं? लेट अस से आई मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 10 एंड इक्वेशन नंबर 3 बाय 9, ताकि 90 बन जाएगा, ये 90i2, ये भी बन जाएगा 90i2। तो मेरे पास क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर 2 का बन जाएगी 2.1, सो 10 इज इक्वल टू 50i1 प्लस 90i2, एंड इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी 3.1, that is 9 is equal to 171i1 plus 90i2, that's equation number 3.1. Let us subtract the second equation from the first, तो हम साइन चेंज करते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, 10 माइनस 9 इज 1, और ये बचा मेरे पास -121i1। तो i1 मेरा आ गया बच्चों -1/121 एम्पियर। अभी समझेंगे इसको, माइनस का मतलब क्या है, बट ये i1 आया मेरे पास। अब मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ i1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, आई कैन पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2। i1 मुझे पता चल गया, यहां से i1 के डाल दूंगा तो मेरे पास i2 आ जाएगा। i2 मेरा आ जाएगा बच्चों, आप सॉल्व करना, 14/121 एम्पियर। वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारा सॉल्व करके आंसर प्लस आए, जैसे i2 प्लस आ रहा है, i1 माइनस आ रहा है, इसको समझते हैं पहले। तो अगर ऐसा आए तो इसका मतलब कि अगर प्लस आए तो इसका मतलब i2 प्लस आया ना, मेरा i2 प्लस आया, इसका मतलब ये जो मैंने करंट की डायरेक्शन बनाई है ना सर्किट के अंदर पर्पल एरोस के साथ, ये सही डायरेक्शन है, i2 ऐसे ही फ्लो करेगा। लेकिन i1 मेरा नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव -1/121, इसका मतलब जो हमने करंट की डायरेक्शन चूज की थी अपनी मर्जी से, वो हमने गलत चूज कर ली, ऑपोजिट चूज कर ली। असली में करंट इसके ऑपोजिट फ्लो करता है, दैट इज द मीनिंग। कभी भी आपका आंसर नेगेटिव आए करंट का, तो ये मतलब द चोजन डायरेक्शन इन द डायग्राम इज ऑपोजिट टू द रियल डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, फिर क्वेश्चन था हमारे पास, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 10 ओम रेजिस्टेंस। 10 ओम के अंदर कितना करंट है, करंट तो है i1 प्लस i2, तो डालता हूं मैं 14/121 प्लस -1/121, दैट विल बी 13/121, रेजिस्टेंस एट 10, तो वोल्टेज ऑफ 10 ओम विल बी 130/121, दैट्स 1.09 वोल्ट, राइट? So that is the answer. The voltage is 1.09 volt. Okay. तो आपने समझा पहले, अब आप इसको पॉज करें, फिर से देखने की जरूरत है तो देखें, अन्यथा आप इसको प्लीज खुद से करें अपने आप। लॉस को अप्लाई करना आना जरूरी है। फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्किल, यू नो, अनलाइक biology which is a subject which you have to remember and learn. Chemistry also some learning is required. Physics is one subject which is a skill development subject, आपको करना आना चाहिए, remembrance कम चाहिए, skill ज़्यादा चाहिए। Okay, let me take another example.
एक और एग्जाम्पल करता हूँ आपके साथ। Alright, let me do one that I've solved. Okay. Let me check. Alright. So हमारे पास एक ऐसा लूप, थोड़ा सा अच्छा वाला लेता हूँ। क्वेश्चन, हियर वी हैव अ लूप, ऐसा सर्किट है, हमारे पास एक 5 वोल्ट बैटरी है। सबसे पहले बैटरीज को देखना चाहिए। 10 वोल्ट बैटरी है, उसके बाद ये रेजिस्टेंस है 2 2 4 1 4, ऐसी रेजिस्टेंसेस हैं। क्वेश्चन है फाइंड द करंट इन ईच आर्म। ईच आर्म कितना करंट है। हमको अपने करंट्स को कम से कम रखना चाहिए। बैटरी से जो करंट आ रहे हैं उनको तो रखना ही पड़ेगा। मान लो मैं बोलता हूँ ये 10 वोल्ट की जो मेरी बैटरी है ये भेजती है I1 करंट, इसने इधर भेजा I1 करंट, ए पर पहुंचा। अब आगे दो रास्ते हैं, अब बड़ी प्रॉब्लम है। मैं बोलता हूँ लेट अस सपोज ए से डी जाता है I3 करंट, और यहाँ से क्योंकि I3 क्यों रखा, क्योंकि मैंने इस बैटरी का करंट रखा है, मैंने इसका नाम I2, 5 वोल्ट ने I2 भेजा, 10 वोल्ट ने I1 भेजा है। तो अब मैं इमेजिन करता हूँ, लेट अस सपोज द करंट फ्लोइंग थ्रू द आर्म AD इज I3। I1 आया, I3 इधर चला गया, तो किरचॉफ्स करंट लॉ ए पे लगाऊंगा। तो करंट कमिंग इन शुड बी इक्वल टू करंट गोइंग आउट। लेट अस सपोज AB का करंट x है, थोड़ी देर के लिए x मानते हैं इसको। तो I1 इज इक्वल टू I3 प्लस x। So from here I find x is equal to I1 minus I3, मार्क कर लिया ग्रीन। ये मेरा करंट थ्रू 4 ओम इज I1 माइनस I3। ठीक है। अब हमको एक बात और मालूम है कि बैटरी ने बोला था ना, कसम खाई थी जितना आप बाहर भेजूंगी उतना ही लूंगी। तो यहाँ पे भी लिख दो आप, C से यहाँ पे I1 करंट आ रहा है, इधर भी लिख दो इस बैटरी ने I2 भेजा, यहाँ पे भी निशान लगा लो, ये लेगा भी वापस I2। ठीक है। अब let us apply the Kirchhoff's current law at junction B। यहां से आया I1 माइनस I3, इधर से आया I2। दो तारों से करंट अंदर आता है तो एक से ही तो बाहर जाएगा, है ना। सो I have I1 minus I3 plus I2 will be the current through this 2 ohm resistance। तो मैं लिख दिया I1 प्लस I2 माइनस I3। ठीक है। अब यहां से C पे, अब देखो इधर में क्या है, इधर से I3 करंट आ रहा है। लेट मी लुक एट किरचॉफ्स लॉ एट जंक्शन D। जंक्शन D, लेट अस से ये Y है, पता नहीं कितना है। I3 यहां से आया, I2 इधर चला गया, तो मैं बोलता हूँ इसका नाम Z रख लेता हूँ, ये Z है मेरा। सो यहां से I3 आया, यहां से I2 चला गया, तो ये लेटा से इधर जा रहा है, तो मैं बोलूंगा I3 is going to be equal to I2 plus IZ। so what is or Z, और Z will be equal to I3 minus I2। तो यहां से जो करंट गया वो है I3 minus I2। इधर देखते हैं, इधर आया I3 minus I2, यहां से आया I1 plus I2 minus I3, और इधर जाता है I1। लेट अस चेक C जंक्शन सही है क्या। C जंक्शन पे लगाओ तो वी विल फाइंड एट जंक्शन C ये दिस करंट कमिंग डाउन फ्रॉम B टू C प्लस दिस करंट गोइंग फ्रॉम D टू C कितना बनता है, इसको I1 बनना चाहिए, राइट। देखो इन इसको और इसको हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ प्लस I3 या माइनस I3 कैंसिल हो जाएगा, इधर प्लस I2 यहाँ माइनस I2 कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ कितना बचा I1। सही है, I1 ही तो गया यहाँ पर, तो ये बिल्कुल सही आया। अगर हमारा सब सही आ रहा है तो इसका हमने किरचॉफ्स करंट लॉ ठीक लगाया है। अगर किरचॉफ्स करंट लॉ में ही स्टेप में गलती होगी ना, उसके आगे के स्टेप करने का कोई फायदा नहीं है। करंट नहीं ठीक से डिवाइड करोगे तो फिर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में अपनी एनर्जी वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है।
तो अब देखो हमारे पास तीन अननोन करंट हैं, I1, I2 एंड I3। तीन करंट हैं, तीन अननोन हैं, तो इक्वेशन से मेरे को तीन चाहिए। अब तीन क्लोज्ड रास्ते मुझे चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, ये तीन ट्राइंगल ले लेता हूं। एक लेता हूं बी सी ए बी, बी से स्टार्ट सी ए बी, बकअप 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 रास्ता बकअप। एक ले लूंगा मैं रास्ता बी सी डी 5 वोल्ट बी, एक इधर वाला ट्राइंगल, और एक लूंगा मैं नीचे वाला ट्राइंगल। ओके, आओ एक एक करके लेते हैं। तो मैंने इस ट्राइंगल को, इस ऊपर वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, इसको हम देख रहे हैं बकअप बकअप ट्राइंगल। ओके, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। बी से कहां गए, सी, सी से ए से बी। समेशन वोल्टेज इज इक्वल टू समेशन आई आर। बी से सी गया तो करंट कितना है, करंट तो इतना है। रेजिस्टेंस कितना है, 2। हमारे चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम, तो प्लस, इसी में लिखा +2 I1 + I2 - I3। सी पे पहुंच गए। अब सी से ए की तरफ जाना है हमको। करंट कितना, I1, रेजिस्टेंस 1, राइट, +1 I1। बैटरी पहले कौन सी आई, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। हम लोअर से हायर गए तो +10 आएगा यहाँ पे, सही है। अब हम ए से बी जाएंगे, करंट है I1 - I3, हमारे चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम, तो +4 × I1 - I3 दैट्स इक्वल टू, यहाँ पे 10 आ चुका है। इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से 2I1 + I1 3I1 + 4 7I1, I2 आएगा मेरे पास +2I2, और इस तरह I3 मेरे आएंगे -6I3। दैट्स इक्वेशन नंबर 1। एक और बनाते हैं किरचॉफ्स, ये वाला इसके ऊपर लगाने जा रहा हूं मैं, इस वाले पाथ के ऊपर। बी सी डी 5 वोल्ट बी, बी सी डी 5 बी, समेशन वी इज इक्वल टू समेशन आई आर, सेम 2 × I1 + I2 - I3, 2 × I1 + I2 - I3। फिर C से D जाता हूं तो मेरी डायरेक्शन चलने की C से D है, लेकिन करंट की डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, इसलिए -2 × I3 - I2। इधर तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, अब क्या है, हम पहले लोअर फिर हायर जा रहे हैं, तो +5, आई राइट +5। इसको भी सिंप्लीफाई करता हूं, ओपन करके अलग अलग करता हूं I1 I2 I3, तो आई गेट माई इक्वेशन 5 इज इक्वल टू 2I1 + 4I2 - 4I3। ओके, तो हमने KVL लगाया। अब हम लगाते हैं KVL किस पे, ये लोअर वाले पे। KVL हम लगा रहे हैं इसके ऊपर, इस सर्किट पे। हमने क्या लूप लिया, डकैड DCAD, डकैड DCAD। ये रास्ता लिखना जरूरी होता है, तभी पता रहता है ना प्लस लेना के माइनस। लिखोगे नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। DCAD में समेशन V इज इक्वल टू समेशन आई आर। D से चलो C, रेजिस्टेंस 2, करंट है I3 - I2, ट्वाइस ऑफ I3 - I2, प्लस 1 × I1, वोल्टेज में +10, और अब हम A से D आ रहे हैं, करंट I3, रेजिस्टेंस 4, सो +4I3, ये लिखा हमने, +4I3 I1, और वो इक्वल टू 10। इसको भी ओपन किया तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, दैट इज 10 इज इक्वल टू I1 माइनस ट्वाइस ऑफ I2 प्लस 6 टाइम्स ऑफ I3। तो तीन इक्वेशन आ गई हमारे पास, I1 I2 I3 में तीन इक्वेशन आ गई। अब तीन इक्वेशन आपके पास हैं, अब आप लिखो, अब सॉल्व करने की कोशिश करो। मैंने क्या स्टाइल किया, मैं बोलता हूँ आई एम एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 1 एंड 2 क्यों कर रहा हूँ ऐड, बिकॉज इसमें +6I3 है, इसमें -6I3 है, तो सिर्फ इक्वेशन बच जाएगी I1 और I2 की, राइट। और क्या है, +2I2 है, यहाँ -2I2 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा 7I1 + I1 is 8I1 is equal to 10 + 10 20। So I1 will be 10/4 or 5/2 ampere।
अब आपको I1 मिल गया, अब डाल दो I1 की वैल्यू, तीनों के अंदर डाल दो, किसी दो में डाल दो, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी I2 और I3 की। मान लो आप इक्वेशन नंबर ये जो 3 है या 4 इक्वेशन है, इसको हम डाल देते हैं इसमें और इसे इसमें, अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन जाएगा। तो आपको आता है 10th क्लास से करना। सॉल्व करो, मैंने आपके लिए सॉल्व करके आंसर लिख रहा हूँ। I2 विल बी इक्वल टू I3, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इज इक्वल टू 15/8। आप प्लीज खुद करेंगे और आप देखें दैट तीनों करंट प्लस आ रहे हैं। I1 5/2 एम्पियर, I2 और I3 आ रहे हैं 15/8 एम्पियर, तीनों प्लस आ रहे हैं। इसका मतलब जो हमने करंट्स की डायरेक्शन गलती से ही चूज की होंगी, चाहे जो चीज़ की थी वो सही है। जिस डायरेक्शन में हमने एरोज बनाए हैं करंट के सर्किट में और जो असली डायरेक्शन ऑफ करंट है, बोथ आर द सेम, राइट। तो अब तो दो क्वेश्चन मैंने आपको कराए, 2-3 क्वेश्चन करा दिए। आप एक दो अपनी तरफ से किसी भी बुक से, कोई भी रिफ्रेशर से आप कोई क्वेश्चन ले सकते हैं, उसको आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। बट जो मैंने करवाए हैं उनको तो आप प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, this is it as far as our today's class is concerned. Today in this class we have learned about Kirchhoff's second law, called as the loop rule, or the Kirchhoff's voltage law, KVL. And we have also seen how to apply Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law to solve circuit problems of complicated circuits. This is the first time you are learning such a thing, so please do become comfortable at it. Leave a like and subscribe to the channel. Thank you very much. This is Minish Gulati, making physics super easy for you on behalf of Happy Model Higher Secondary School at Udhampur. Stay blessed, stay happy and healthy. Bye-bye.